नमस्कार साथियों, मैं विपुल मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके बहुत ही प्यारे चैनल वीएनएस क्लासेस पर। दोस्तों, आज तारीख है 7 सितंबर 2021 और शुरू करते हैं आज का बेहतरीन करंट अफेयर्स आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन नंबर 1। US President Joe Biden on Friday ordered declassification over the next 6 months of still documents from the government investigation into the 9/11 terrorist attacks. The push for more information is being driven by victims' families suing which country for alleged complicity in the attack. ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी सऊदी अरेबिया, ऑप्शन सी रसिया, ऑप्शन डी ओमान। द आंसर इज सऊदी अरेबिया। जैसा कि आप आर्टिकल में देख पा रहे होंगे, प्रेसिडेंट बाइडन डिक्लासिफाइज सीक्रेट फ्लाइज on 9/11 attacks. He responded to pressure from families of 2,977 killed. जब हम बात करते हैं यूएसए की तो प्रेसिडेंट हो जाते हैं जो बाइडन, कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, करेंसी है यूएस डॉलर। वहीं बात करें हम सऊदी अरेबिया की तो वहाँ के किंग हैं सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया, कैपिटल हो जाती है रियाद, करेंसी है सऊदी रियाल। Question number 2. A tripartite agreement among 5 insurgent groups of Assam, the center and the state government was signed on Saturday to end years of violence in the which region? Option A Nalbari, option B Karbi Anglong, option C Nagaon, option D Deephu. So the answer is Karbi Anglong. जैसा कि आप आर्टिकल में देख सकते हैं, पीस डील इंक्ड टू एंड कार्बी अनरेस्ट। जो कार्बी एंगलोंग रीजन है वहाँ पर पीस डील साइन करी गई है वहाँ के जो ग्रुप्स हैं उनके और असम गवर्नमेंट के बीच में। ट्राई पार्टी एग्रीमेंट अमोंग 5 insurgent groups of Assam, the center and the state government was signed on Saturday to end years of violence in the कार्बी एंगलोंग रीजन। जब बात करते हैं हम असम की तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हो जाते हैं हेमंता विश्व शर्मा, गवर्नर है प्रोफेसर जगदीश मुखी, कैपिटल है दिसपुर। क्वेश्चन नंबर 3। Which country has passed an amendment to the country's Telecommunications Business Act that has been dubbed the Anti-Google Law, preventing dominant App Store operators effectively Alphabet's Google and Apple from forcing app developers to use their in-store payment systems? Option A Iran, option B Russia, option C South Korea, option D China. So the answer is South Korea. जैसा कि आप आर्टिकल में देख सकते हैं, ऐप स्टोर चैलेंज। हाउ डज साउथ कोरिया एंटी गूगल लॉ फ्री अप इन ऐप पेमेंट्स? विल इट हिट द कमीशन ऑनलाइन? बात करते हैं हम जब साउथ कोरिया की तो प्रेसिडेंट हो जाते हैं मून जाए इन, कैपिटल है सियोल और करेंसी हो जाती है वहाँ की साउथ कोरियन वॉन। Question number 4. Name the Thai minister who survived a no confidence vote in parliament on Saturday. Option A Prayut Chan-o-cha, option B Thammanth Prompao, option C Anutin Charnvikrol, option D none of the above. So the answer is Prayut Chan-o-cha. The news is Thai protesters hit the streets
as PM wins no confidence vote. Prayut government shamed over virus response, economic woes. सो बात करते हैं हम जब थाई यानी थाईलैंड की, तो प्रेसिडेंट हो जाते हैं प्रायुत चान ओ चा, कैपिटल है आपकी बैंकॉक, करेंसी है थाई बैट। Question number 5. In 2003, internal differences led to the Hurriyat split into two factions, one being loyal to and the other to Alisa Gilani. So the one being is A option Muhammad Ashraf Sehrai, option B Yasin Malik, option C Masrat Alam, option D Mirwais Umar Farooq. So the answer is Mirwais Umar Farooq. Mirwais Umar Farooq and the Alisa Gilani, the Hurriyat leaders. जैसा कि आप न्यूज़ में देख सकते हैं, द अलायंस आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स पैट्रियार्च. Question number 6. US Open defending champion Naomi Osaka lost to whom in the third round of the tournament? Option A Lele Fernandez, option B Bianca Andreescu, option C Anastasia Potapova, option D Rebecca Marino. सो नाओमी ओसाका को लेले फर्नांडिस ने थर्ड राउंड में हरा दिया है. ये आप आर्टिकल में देख सकते हैं. फर्नांडिस dethrones and agitated Osaka, defending champion, to take a break from tennis. Question number 7. How many women judges does the Supreme Court currently have out of the sanctioned strength of 34? Option A 9, option B 11, option C 3, option D 4. तो जो रिसेंटली जजेस ने वोट टेक की थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 4 वुमेन जज हो गई हैं. रिसेंटली 3 वुमेन जजेस ने शपथ ली थी. जैसे आप आर्टिकल में देख सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि एनवी रमन्ना है, वो कह रहे हैं फ्यू वुमेन मेक इट टू द टॉप. बात करते हैं हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, तो फाउंडेड इन 26 जनवरी 1950 इन न्यू दिल्ली. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज एनवी रमन्ना. क्वेश्चन नंबर 8. Which state cabinet on Saturday decided to ban online gambling or betting by amending its Police Act? रिसेंटली किस स्टेट गवर्नमेंट ने गैम्बलिंग और बैटिंग पर जो ऑनलाइन होती थी उस पर बैन लगा दिया है? ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी राजस्थान. तो हाल ही में कर्नाटका गवर्नमेंट ने बैन किया है ऑनलाइन गैम्बलिंग और बैटिंग को. जैसा कि आप न्यूज़ में देख रहे होंगे, कर्नाटका कैबिनेट डिसाइड्स टू बैन ऑनलाइन गैम्बलिंग. जब बात करते हैं हम कर्नाटका की, तो कैपिटल हो जाती है आपकी बेंगलुरु. सीएम है बसवराज बोम्मई, गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत. Question number 9. Who was the maiden gold medalist in men's SL3 category badminton event at the Paralympics? Option A Daniel Bethel, option B Pramod Bhagat, option C Singraj Adhana, option D Sergey Malishev. So the answer is Pramod Bhagat, who won gold medal in SL3 category badminton. जैसा कि आप न्यूज़ में देख सकते हैं, गोल्ड रश कंटिन्यूज एट पैरालंपिक्स. शूटर नारवाल शटलर भगत क्लिंच द येलो मेडल टू टेक इंडिया टू 26th spot.
जैसा कि आपको पता है भारत ने पैरालंपिक्स में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है। भारत ने 19 मेडल्स जीते हैं, जिसमें 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रांज हैं। जब हम बात करते हैं पैरालंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट की, तो हमारे सामने लिस्ट आती है। सुमित अंटिल, प्रमोद भगत, कृष्णा नगर, मनीष नारवाल और अवनी लेखारा। इसी के साथ वीडियो का होता है अंत। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।